لا 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 نحتاج المال. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सारी तबाही मची हुई है, मुस्तकिल बर्फ़ पड़ रही है, सब टपक गया है मेरा। देखें सारा सामान है, इसको सेट भी करना है। और बाहर देखें कितनी कितनी बर्फ़ पड़ी हुई है। अभी रात में भी सब बच्चों ने सही किया था और क्या कहते हैं सुबह में भी किया, लेकिन ये कि फिर ही पड़े जा रही है। मुस्तकिल कंटिन्यूस बर्फ़ है और मुझे निकलना है कुछ बहुत ज़रूरी काम से, तो मैंने कहा निकलती हूँ। लेकिन आप हाल देखिए रोडों का कैसा बुरा हाल हो रहा है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हर मौसम की अपनी ब्यूटी भी है। अल्लाह सुब्हाना ताला ने चारों मौसम बनाए तो उनकी अलग खूबसूरती है, अल्लाह का शुक्र है। और देखने को मिल जाते हैं माशाअल्लाह। और इन्हीं के अंदर अल्लाह की साइंस हैं कि अल्लाह बताते हैं कि मेरी चीज़ों पे, साइंस के ऊपर गौर करो तो तुम्हें मेरे ऊपर और मेरी कुदरत पर यकीन भी हो जाएगा कि कैसे वो गर्मियों से सर्दियां ले आते हैं और बर्फ़ पड़ जाती है। चलें ज़रा निकल के जा रही हूँ मैं, अपना कुछ सामान लेना है मुझे आर्ट एंड क्राफ्ट का। वो मैंने प्रोजेक्ट शुरू किया है तो उसके लिए चाहिए मुझे कुछ चीज़ें, तो मैंने कहा निकलती हूँ। भाई ठंड भी बहुत हो रही है। चलें ले आके फिर शुरू दिखाती हूँ आपको क्या कर रही हूँ। ठीक है, बारकल्लाहु फ़ीक। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज देखें तो मेरी बहू कुछ नई चीज़ बना रही है, तो अब मैं पूछती हूँ हाँ जी बहू रानी बन क्या रहा है, ये तो पता चले। So it's gnocchi. It's basically pasta balls that are filled with potato. सो अब देखें पास्ता बॉल्स फिल विद पोटैटोज़, और ये लेकर आई है। पैक बड़ा अच्छा सा लग रहा है। और इसके साथ इसने क्या क्या करा है। So I'm gonna put onion in it. Well, before anything, I'm gonna fry these just in olive oil. इनको फ्राई करेगी ऑलिव ऑयल में, देन And then I'm gonna put onions, garlic, and fry them a bit. And then I'm gonna put all my masalas. So like garlic, paprika, salt, pepper. I'm gonna mix that in with the onions. And then I'll put tomato paste, like crushed Okay. tomatoes. And then cream. Cream, And mix it. A little bit of butter as well. तो लेट्स सी के स्टार्ट करके। Alright, so I'm just gonna start with adding a little bit of olive oil in my pan and frying the gnocchi in it. I'm just gonna fry it until it has some color on it. And as you can see here, it has picked up some color. It's a little bit golden brown. At this point, I'm gonna take it off the pan and put it to the side. Add some butter, only a little bit. Let it melt down a bit. And once it is melted, I am going to add my onions. I'm gonna fry these until they're translucent and have a little bit of color on them. Want them to be golden, not burnt. And after that's done, I'm adding my garlic. I love garlic, so I've added a lot of that. That was 2 tablespoons. I'm gonna fry that. After that's done, I've added my crushed tomatoes. Again, there's no measurements here. I'm just adding everything by andaza. I've added 3 table spoonfuls of tomato there. I'm gonna let it cook a bit, and then I'm gonna start adding my masalas. So the first thing I add is salt. I'm not gonna add too much salt, just a little bit. Then I'm gonna add some black pepper. And then I'm gonna add some garlic powder. Again, I love garlic, so I've added a lot of that. And again, no measurements, just by andaza. You can adjust it to your taste. I've added some red chili powder. You can also add paprika. Then I'm just gonna mix it all and let it cook for a bit. Make sure everything is mixed nicely and the tomatoes cooked. Then I'm gonna add my cream. I used about half of that box. Again, can't tell you the measurements, unfortunately, but you can adjust to your taste. I think I added a little bit more after this, just because I felt like it needed more. And there you can see me adding some more. I'm just gonna let it cook again. I've added some lemon and herb seasoning, just a tiny bit, and then some Italian seasoning. And I've also added dried basil leaves. It really gives it a nice flavor. And then you want to add some kind of acid, so you can add vinegar or lemon juice. Here I've added lemon juice, just a tiny bit, like I think that was like 2 or 3 drops, not too much, just to give it that little bit of a kick to the flavor.
Then I added some cheese. You can adjust however much you want to put according to your taste and how thick you want the sauce to be. I just put a little bit. At this point, you can taste your sauce and check for any salt adjustments or any other masalas you want to add more of. And then I've gone ahead and put the gnocchi back into the pan, and you want to mix it properly so the sauce gets on all the gnocchis nicely. You want it to be all fully covered. Then I'm going to finish off with some red chili pepper. I only put a little bit because my husband has no tolerance for spice. And then I'm going to finish it off with some Parmesan cheese. Here you can see my plate. I made some Caesar salad and chicken to go with it. हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए ये मेरा एक प्रोजेक्ट बहुत दिन से पड़ा हुआ था, तो मैंने कहा आज मैं इसको भी शुरू करती हूँ और देखते हैं ये कैसा बनता है। तो मैं रैंडमली इसके अंदर ना ये मिरर्स लगा रही हूँ, चिपक जाएंगे और फिर उसके बाद मैं बाकी जो जगह होगी उधर कुछ और लगाऊंगी। तो देखते हैं ये कैसा टर्न आउट होता है। ठीक है, अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए ये मैंने कर दिया है और ये अब ग्लू से मैंने इसको पूरा लगाया हुआ है और ये जब सूख जाएगा तो फिर हम इसको झाड़ेंगे जो एक्स्ट्रा है और फिर फर्दर हम इसके अंदर और काम करेंगे। आई एम थिंकिंग कि मैं यहाँ पे सिल्वर, क्योंकि मेरा थीम देखें एक्वा ग्रीन है, ब्लू है, ग्रे गोल्डन के साथ एंड सिल्वर के साथ कुछ कॉम्बिनेशन कर रही हूँ, तो मेरा ख्याल है वो बहुत अच्छा लगेगा। और मैं इस बेस को ब्लैक कर दूँगी तो ब्लैक के साथ बहुत उठ के आएगा ये शाइन करके ना। तो देखिए अभी तक मैं यहाँ पहुँची हूँ, लेट्स सी। हाँ देखिए ये मैंने गोल्ड सिल्वर बीट्स लगा दिए हैं इसके अंदर, ये मैंने गोल्डन के साथ कर दिया है। और ये जो दो हैं इधर भी हैं और दो उधर भी हैं, इनको मैं इसी ग्रे से फिल करूँगी और ये वाले मैं गोल्डन से करूँगी। फिर छोटे छोटे जो रह जाएंगे उसको मैं देखती हूँ कि मुझे क्या करना है। ठीक है, चलें मैं दिखाती हूँ। अच्छा बन रहा है ना, ये देखिए ये मेरे पास है, इससे मैं इसको फिल कर रही हूँ जैसे मैंने वो वाले किए थे। ये देखिए मैं इसके अंदर ये फिलिंग कर रही हूँ मिरर्स के बीच में। फिलर्स होते हैं ये सारे जो करने होते हैं ताकि गैप्स जो हैं बस अच्छे से कवर हो जाएं, लुक उसकी अच्छी आ जाती है। जहाँ जहाँ गैप हो रहा है वहाँ वहाँ डाल रही हूँ। अब इसमें जैसे ग्लू लगा के अब इनके अंदर मैं ये फिलिंग कर रही हूँ। वहाँ पे मैंने देखें डिफरेंट कर दिया, इसके अंदर अब मैं ये वाली पूरी में फिलिंग कर रही हूँ। देखिए इसके अंदर मैं खाली रेज़न की एक लेयर लगाऊंगी, तो मैं इसको प्लेन पेंट कर रही हूँ जो मेरे इस एक्वामरीन से मिल रहा है। ठीक है, तो इसकी कोटिंग करेंगे चारों तरफ, होपफुली ये देखें। अब इसके अंदर मैं शैम्पेन डस्टी गोल्ड कर रही हूँ, इधर भी और इधर भी। इट गिव्स अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन। ठीक है, अब ये देखिए दोनों तरफ लगा दिए मैंने। ठीक है, अब इसके अंदर छोटे वाले लगाऊंगी। देखिए ये सर्कल में मैं पहले मैंने वो मोती लगाया है, उसके बाद ये मैं पूरा मिरर के साथ दोनों तरफ लगा दूंगी। ठीक है, इस तरह जाएगा। ऐसे ये भी हो गया, इसको अभी कुछ कर लूँगी। देखिए चलो
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए ये मैंने पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब इसके ऊपर मुझे सिर्फ रेज़न का वो करना है, और रेज़न के लिए मैंने ये ला के रखे हुए हैं। ये मैंने अपनी भांजी का कुछ बना रही थी, उसके लिए करने थे, लेकिन वो देर में आया तो नहीं कर पाई। तो मैंने कहा इसके ऊपर इसकी फुल लेयर डालेंगे हम, और उसके बाद आपको दिखाएंगे ये कैसा लगता है। रेज़न अभी करते हुए भी दिखाती हूँ। दूसरा ये पेयर में था, एक पीस ये पड़ा हुआ है, लेकिन वो मेरे पास कलर ख़त्म हो गया। लेकिन जब वो हो जाएगा तो मैं इसी के साथ दूसरा पूरा पेयर बना के लगाऊंगी। लेकिन मैंने कहा फ़िलहाल जो नहीं है तो फ़िलहाल आप लोग को ये दिखाते हैं। दूसरा मेरी मस्जिद का हल्का है, तो मेरी बहू रानी देखें ब्राउनीज़ बनाए हैं अंदर, और अंदर ओवन में भी और बन रहे हैं, तो हम ये लेके जाएंगे इंशाल्लाह। और लेट्स सी इसको करते हैं अभी। चले जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मेरा असिस्टेंट है मेरा बेटा, क्योंकि ये माहिर हो गया रेज़न बनाने में मेरे साथ, क्योंकि मैं जितनी देर हाथ में दर्द हो जाता है तो हमेशा इसी को करती हूँ, और इसको बड़ी अच्छी रेशो पता है। तो अब हम रेज़न के लिए कोटिंग के लिए दोनों ए और बी के सोल्यूशन को इक्वल, ये वाले ग्लास हैं, दोनों फुल भर के लेंगे और फिर दोनों को इसमें एम्प्टी करेंगे, और 3 मिनट्स तक इनको अच्छी तरह फेंटेंगे। फेंटने के बाद उसके ऊपर हम ग्लव्स पहन के पूरी लेयर लगाएंगे। तो अभी रुबैन पूरी मेजरमेंट कर रहे हैं, देखें कैसे कर रहा होता है, फिर आपको दिखाते हैं। I think till here is fine, till the line. What do you think? We shouldn't go क्योंकि ये बड़ा है। टिल ऊपर तक फुल भर देते हैं। वो जो एज की लाइन है ना वहाँ तक चले जाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम दोनों डाल रहे हैं इकट्ठे, ठीक है। Ami's like overtaking me, bro. नहीं ये कर रही, चलो चलो। ओवरटेक क्यों करूँगे? Not overtake in the sense that yo, she's pushing me out. ये पूरा अच्छी तरह निकल जाए, उसको क्लीन करना होगा हमें स्पैचुला से। Use this. Oh no, it's stuck. ये लो रुपए, पहले एक को खाली करो, मैं वो पकड़ रही हूँ। ये छोड़ दो, हाँ इसको कर, अच्छी तरह से पूरा निकालना है। ये देखें पूरा उसको ना खुरच डाला है, क्योंकि एक एक नुक्ते की कीमत है। Nukte. हाँ, एक एक कतरे की कीमत है इसके। एक कतरे से ख़राब हो जाएगा हमारा। इसको 3 मिनट तक हम मिलाएंगे। चलें, अब इसके बाद जो है हम डालना शुरू कर रहे हैं। मैं बहुत थोड़ा थोड़ा डालना चाह रही हूँ, क्योंकि हमें एक बहुत पतली सी लेयर लगानी है इसके ऊपर। बहुत सारा डाल दिया तो You have like a brush or something? नहीं, इसको हाथ से करेंगे बेटा। पकड़ो, मैं हाथ से करती हूँ। तो उसका वो नहीं? तुम डालो, मैं पकड़ कर ये पकड़ो, इससे थोड़ा थोड़ा डालो। और हाँ ये देखें, बस ऐसे हमें यूँ Where do फैलाना I है। put it? That's so scary. ये देखें, Where do I put it? ऐसे ही डालते जाओ पूरे सर्कल में। हाँ अच्छा, देखें जी, हम लोग ने इसका पूरा रेज़न कर दिया है। अब हम इसे हीट गन से जहाँ जहाँ इसके अंदर हमें नज़र आ रहे हैं बबल वबल, तो वो हम क्लियर कर रहे हैं, फिर ये हमारा बन जाएगा बस। हाँ जी, बिस्मिल्लाह। ये देखें हमने पूरा इसका कर लिया है। इसके ऊपर रेज़न की हमने पूरी लेयर लगा दी है, और इसके बाद अब हम इसको ड्राई होने का टाइम देते हैं, ठीक है। जब ये ड्राई हो जाएगा तो फिर हम आपको दिखाते हैं, या फाइनली जब लगा दूँगी कभी दिखाऊँगी, लेकिन आज मैंने यही करा है। और वहाँ पे हमारे ब्राउनीज़ दिखाओ। हाँ ये देखें माशाल्लाह मेरी बहू रानी ने ब्राउनीज़ बना ली है, और वो ब्राउनीज़ हैं और ये भी मैंने बना लिया है। तो मैंने कहा था कि हम मस्जिद लेके जाएंगे, तो हमने 2 टाइप के बना लिए, वो ब्राउनीज़ और ये ब्राउन। बस चॉकलेट का ऐसी मैंने जल्दी में, क्योंकि इस वक्त मैं उस पर काम कर रही थी रेज़न पे, तो मैंने ज़्यादा कुछ स्पेशल नहीं सोचा करने के लिए। तो लेकिन मैंने कहा नहीं, फिर भी कुछ बना लेते हैं। तो हम दोनों ने, सास बहू ने मिल के सोचा और हमने ये कर लिए, ठीक है। ये देखें क्यूट से 1 बाइट के स्लाइसेस होंगे, और ये हम ले जाएंगे। अभी इसको पैक करके देखते हैं, ठीक है। गया था रेज़न, तो मैंने कहा ये ऐसी जैसे आप जग रखते हैं ना,
तो आपको सम टाइम यू नीड कि कोस्टर के साथ एक हो, तो ये छोटा सा मैंने कहा बना के रख लेती हूँ, काम ही आ जाता है। तो ये मेरे पास रोज़ेस पड़े हुए थे, मैंने कहा इसमें डाल के इसको स्टाइल कर देती हूँ और ये अच्छा भी लगेगा। यू कैन यूज़ इट। इसके अंदर थोड़ा सा मैं ऐड करूँगी क्या, अच्छा ये अलग है ये वाले हैं। दोनों में फ़र्क है अम्मी, मैंने तो उसका डिज़ाइन बना दिया। कोई बात नहीं। ये मैं सारी रोज़ेस उधर कोने में लगा रही हूँ और इसके बाद मैं इसके अंदर डालना चाह रही हूँ एक आध ये डालते हैं। ये भी ड्राई हुई भी है हमारे पास, एज पे लग जाएगी थोड़ी। ऊपर ये मैंने डाल दिया, मैंने कहा ये अच्छा लगेगा, चलो इसकी लुक हो जाएगी ना थोड़ी सी दब के। इसके अंदर चला गया। इसके साथ अब मैं क्या करने लगी हूँ, अच्छे से मैंने उसको पुश कर दिया अंदर ना, ताकि बाहर ना निकले। ऐसे भी बन रहा है। ड्राई है ना तो थोड़ा हार्ड होता है। ये देखें इस कॉर्नर पे भी और इसको भी अंदर पुश कर रही हूँ मैं, तो ये पुश होके अंदर चला जाएगा उसके साथ। वैसी कैजुअल सी टेप वो बन जाएगी आपके पास कि चलो सम टाइम कोस्टर्स के लिए तो, कप्स के लिए तो कोस्टर्स होती हैं, बट इन चीज़ों के लिए कि जिस पे जग रखना हो, कुछ चाहिए हो, तो उसके लिए नहीं होती हैं, तो ये विल वर्क। अच्छा, इसके साथ अब इसमें मैं क्या कर सकती हूँ मैं आपको दिखाती हूँ। मैं इसके अंदर थोड़ा सा लीव्स डाल दूँगी। लीव्स भी बहुत अच्छे लगते हैं, इज़ अ वेरी क्यूट लुक देते हैं उनको। और डालने से चमक आ गई उसमें पूरे में। ठीक है, ये हमारा बन गया बिस्मिल्लाह। और ये मैंने इसमें गोल्ड लीफ भी डाल दिया। अब ये एक बन गया और इसके ऊपर आप जग रख सकते हैं। और इसी तरह का एक और अगर मैं बनाऊं छोटी छोटी कोस्टर्स, तो ये पूरा कोस्टर्स, 4 कोस्टर्स और एक जग का कोस्टर का प्रॉपर सेट बन जाएगा। तो अब रुबैन इसको हीट कर रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बड़ा अच्छा दिन गुजर गया, बना ली भी मैंने अपना आर्ट भी बना लिया। बहू ने मेरी बड़ा अच्छा सा पास्ता बनाया, फिर हमने क्या कहते हैं उसने बनाए ब्राउनीज़ और मैंने चॉकलेट केक बनाया और हम मस्जिद ले गए, ख़त्म भी हो गया। सबको बहुत पसंद आया, बड़ा क्विक हमने उसकी रेसिपी बनाई थी। समझ नहीं आ रहा था सारा वक्त कि क्या करें, क्योंकि मैं अपने प्रोजेक्ट पे आर्ट वाले काम कर रही थी। उम्मीद है आपको पसंद आए इंशाल्लाह वाला। तो मैं उसमें लगी हुई थी, तो फिर मैंने आज कुकिंग का ज़्यादा काम नहीं किया था। मैंने कहा कल का खाना पड़ा हुआ है, तो वो सब चल गया था। और चलें आज एक अच्छी बात पे हम ख़त्म करते हैं। मैं इस वीक में मैंने जितना भी पढ़ा, हमने अपनी क्लास में भी पढ़ा, और वो तो मैंने ये देखा कि 2-3 जगह पे ज़िक्र, आज हम मस्जिद में भी हल्का में ज़िक्र आया, वो यही आया कि किस तरह एक एम्ब्रियो क्रिएट होता है माँ के पेट में, और अल्लाह ने उसकी तमाम कुरान के अंदर एक एक चीज़, उसकी स्टेजेस बता दी हैं कि कैसे एक ब्लड क्लॉट से एक नुत्फ़ा बनता है, अलक़ा बनता है, और उसके बाद एक पूरा गोश्त का इंसान बन के आ जाता है। सूरह बुरूज के अंदर है इन्नहु युब्दी व युईद, कि अल्लाह बनाता है शुरू में और उसको दोबारा भी बना लेता है। फिर सूरह तारिक के अंदर अगर आप पढ़ें तो फलयंजुरिल इंसानु मिम्मा खुलिक़, कि हमने इंसान को कैसे पैदा किया। खुलिक़ मिन माइन दाफ़िक़, हमने उसे पानी के हकीर से कतरे से पैदा किया। यख़रुजु मिन बैनि सुल्बि वत्तराइब, वो जो एक पसलियों और लॉइन के बीच में से आता है उससे पैदा कर, और उसके बदले में अल्लाह एक पूरा गोश्त पोस्ट का इंसान बना देता है। और आखिर उसमें फिर अल्लाह कहते हैं कि इन्नहु अला रज्इही लक़ादिर, तो अल्लाह कादिर है उसको दोबारा बनाने के लिए। तो एक पानी के कतरे से, जो एक बिल्कुल आम सा कतरा है, उससे माँ के पेट में जाके और एक पूरा बच्चा बाहर आ जाता है। तो ये अल्लाह ही की कुदरत है, और अल्लाह इसी तरह हमें क़यामत के दिन हमारी कब्रों से उठा देंगे। अल्लाह के लिए कोई मुश्किल काम नहीं है।
और ये इतनी सारी निशानियां हैं अगर आप कुरान पढ़ें, और ये कितने उस वक़्त के अरबों के वो ज़माने में कौन सा हमारी साइंस जो थी वो इतनी टेक्नोलॉजी या कुछ भी थी, अल्लाह ने उस वक़्त कुरान के अंदर स्टेजेस ऑफ एम्ब्रियो और बता दी पूरी। तो आप सोचें कि हम इस कुरान को कैसे डिनाई कर सकते हैं, हम इस कुरान को कैसे, हम इसके ऊपर यकीन, हमारा हम क्यों नहीं पढ़ते और हमें अल्लाह पे यकीन कैसे नहीं हो सकता कि अल्लाह हमें वो सब चीज़ें बता रहे। और फिर अल्लाह ये भी बता रहा है कि इंशाअल्लाह हम क़यामत के दिन जब अल्लाह के हुजूर हाज़िर होंगे तो हम अच्छाइयों का अच्छा सिले मिलेगा, बुराइयों का बुरा सिला मिलेगा। तो ये हमें सबक मिलता है कि अल्लाह सुब्हाना ताला की हम क्यों आए हैं, बंदगी करें, दुनिया में भी अच्छे तरीके से गुज़रें और आखिरत में भी अच्छा मिले। जो दुआ है ना, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना, तो अल्लाह सुब्हाना ताला दुनिया में भी हमें हसनात अता फ़रमाएँ, वल आखिरत हसना वक़िना अज़ाबन नार, अल्लाह हमें यकीनन कब्र के अज़ाब से भी महफूज रखे। ये दुआ है सब के लिए। आप अपना ख्याल रखिए, अपने इर्द गिर्द के कुरान से अटैच हो जाइए। कुरान जितना जितना आप पढ़ते जाएंगे आपकी ज़िंदगियों में चेंज आएगा, और ये कुरान ही आपको इंशाअल्लाह ताला आखिरत के अंदर खड़ा होके हमारी शफात फरमा देगा इंशाअल्लाह ताला। तो बस अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर का बटन दबाएं और बेल का आइकन भी दबाएं। और ये कि अल्लाह सुब्हाना ताला हम सब मुसलमानों पे जहाँ कहीं भी हैं, फ़लस्तीन है, पाकिस्तान है, लबनान, गज़ा, सूडान, जहाँ कभी बर्मा, हर जगह अल्लाह उन पे रहम फरमाए। जो लोग परेशान हैं अल्लाह उनके परेशानियों को आसान कर दे, उनके लिए ईज़ कर दे इंशाअल्लाह ताला। और हमारा अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका हुस्नुल ख़ातिमा करे इंशाअल्लाह। हम वही दुआ मांग रहे होते हैं। और क्या हमें इबादत का सलीका सिखा दे अल्लाह ताला, अब किसी की मोहताजी ना दे उसके सिवा, उसकी मोहब्बत, उसके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और उस कुरान की मोहब्बत हर मोहब्बत से ऊपर हो जाए इंशाअल्लाह ताला। दुआ में याद रखिएगा। फिर दोबारा किसी बहुत अच्छी वीडियो के साथ दोबारा आऊँगी। बस आज मैंने कुकिंग नहीं की, आज आप मेरा आर्ट देखिएगा, यकीनन आपको पसंद आएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बारकल्लाहु फ़ी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। لا 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 نحتاج المال